Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, in the last session we did the sentences of affirmation in simple present. Today in this 7th lesson we will do the sentences of negative. ठीक है, negative sentences हम लोग करेंगे. The sentences which have not in themselves. And the another thing we will do, that is arising questions, means how do we construct questions, how do we structure questions easily in our day-to-day life. So let's start with this. So first of all, I would like to write here the structure of negative: subject plus do plus not, then first form of verb and object. So first of all, here this is the subject, this is do, not, verb first and object. You must be thinking that where from this do has come, ये do क्यों आ गया है, कहाँ से आ गया है. Actually when we were making the sentences of affirmative simple, तो हम sentences में verb के form को change कर देते थे according to the subject. वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म हो जाता था. नाउ अब हम ऐसा नहीं करेंगे. वाइल वी मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस वी विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इन प्लेस ऑफ दैट वी विल जस्ट इंक्लूड डू और डज इन प्लेस, ओके, बिफोर नॉट. नॉट के पहले हम डू या डज लगाएंगे. इफ़ वी मेक द कंबाइंड फॉर्म ऑफ डू प्लस नॉट, इट विल बी डोंट. So while speaking you can say don't or you can say do not. It depends totally on your choice what you want to speak. But now let's see what subjects are there with whom we are going to use this structure. Okay, so the subjects will be they, we, you and noun, but this should be plural in number, and except this we will do one. I is the only exceptional subject with which even being a singular one, it always takes a plural form of verb. ये हमेशा अपने साथ plural form of verb लेता है. बाकी rest of आप जितने भी देख रहे हैं ये सभी के सभी plural में हैं. So let's take an example. जैसे let me think a sentence in negative. मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाता है. If I say मेरा दोस्त, it means that person is a singular one. So I cannot use this structure for that because I have already written here कि ये plural के लिए use होगा. Then I will think मेरे दोस्त स्कूल नहीं जाते हैं. My friends, मेरे दोस्त, my friends do not go to school. Or I can say my friends don't go to school. मेरे दोस्त स्कूल नहीं जाते हैं. I can write here don't in place of do not. So this do not can be replaced with don't. The structure for the subjects which are one in number, that are singular in number, is subject plus does plus not plus first form of verb and then object. This does not can be replaced with doesn't. You can say doesn't it in one. आप इसको एक करके doesn't लिख सकते हैं. So this structure will go for those subjects which are singular in number. जब हम किसी एक की बात करेंगे तो हम इस structure को follow करेंगे इन sentences को बनाने के लिए. So I can write here that he, she, it, noun, singular. Means we can use the pronouns he, she, it और noun, जो भी noun singular होंगे. he, she, it means आपको हर बारी सिर्फ ऐसे ही pronoun words यूज़ नहीं करने. सिर्फ he, she, it ही नहीं है, बहुत सारे pronoun words हैं जैसे someone है, somebody है, nobody है, anybody है. So you can use all that. लेकिन it should be always singular in number. जो singular in number होगा subject, उसी के साथ ये वाला structure हम लोग use करेंगे. Let's have an example. जैसे I wrote in the previous example, I wrote my friends. Here I will write my friend doesn't study. मेरा दोस्त पढ़ाई नहीं करता है, मेरा दोस्त स्टडी नहीं करता है.
चलिए अब एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग सब्जेक्ट के साथ होगा, और इसी स्ट्रक्चर पे बेस करके उन एग्जाम्पल्स को शॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे हम सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। हम अपने डे टू डे लाइफ से ही ले लेते हैं। जैसे सपोज वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड टू मी, डू यू गो टू ऑफिस एवरी डे? Then I'll say I do not go to office every day. मैं रोज़ ऑफिस नहीं जाती हूँ. Do you come every day to school? No, I do not come to school every day. Do not, don't. So this was just about singular. ये तो I के साथ हो गया. Let's make other sentences. जैसे राजीव does not play well. राजीव अच्छे नहीं खेलता है, अच्छे से नहीं खेलता है. विराट कोहली does not hit सिक्सर्स. विराट कोहली सिक्सर्स नहीं हिट करता है. डोंट टेक इट पर्सनल, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी क्रिकेट फैंस. विराट कोहली के बहुत सारे फैंस हैं, तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली. अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि सोनू निगम डज नॉट सिंग सूफी सॉन्ग्स. सोनू निगम सूफी सॉन्ग्स नहीं गाता है. सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स यू कैन से. जैसे सोनू निगम, विराट कोहली, ये मैंने जितने भी वर्ड्स जो भी मैंने सब्जेक्ट्स यूज़ किए ये सब के सब सिंगल में हैं. अब अगर प्लूरल में बनाते हैं तो द क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले वेल. क्रिकेट प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलते हैं. ठीक है. द फुटबॉलर्स ऑफ माई स्कूल डू नॉट विन एनी ट्रॉफ़ी. मेरे स्कूल के जो फुटबॉलर्स हैं वो उन्होंने कभी कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीती है, वो नहीं जीतते हैं. ठीक है. ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हो गए. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल, सम सेंटेंसेस रिटन हियर एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म देम इनटू इंग्लिश. हिंदी से लिख के इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट मोर इजीली. Here I have written 4 examples. These 2 examples are of singular subject and these 2 examples are of plural subject. So we will just not translate them, we will transform it. Here we have seen that यहाँ पे हमारे पास singular subject है, तो हम क्या करेंगे, इस singular subject को plural में बनाएंगे. So we can do here boy, then we will write s, so it will be boys. Now it's about the plural number, then we will just do here do not play. This is the simple way we can transform it. Whenever you get a plural number of subject, आप यहाँ पे simply does not है, it means that you have to transform it into do not. Here he doesn't work in a bank. वह एक बैंक में काम नहीं करता है. So he, what can be the plural for he? तो he की जगह पे हम लोग कुछ दूसरा pronoun डालेंगे, that is in plural number. So we can write here they don't work in a bank. If you want, जैसे he के लिए मैंने they इसलिए यूज़ किया है because he is a third person, और they भी जो है third person हो जाएगा. अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी plural number का subject include कर सकते हैं. Here they do not smoke. वे लोग smoke नहीं करते हैं. This is already in plural, so we will do it in singular. So for they, we can write here Shyam does not smoke. Shyam does not smoke. I don't cook food. मैं खाना नहीं पकाती हूँ. तो यहाँ I की जगह पे मैं यहाँ she कर देती हूँ. She doesn't cook food. वह खाना नहीं पकाती है. सो दिस इज़ अ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन. कैसे आप सिंगुलर में होगा, और ये डू नॉट डज नॉट आपको याद नहीं करना पड़ेगा व्हेन यू विल स्टार्ट सेइंग द सेंटेंसेस. सुनने में ईजी लगता है स्टार्टिंग में, बट वाइल यू प्रैक्टिस इट, इट विल बिकम ईजी फॉर यू ऑल्सो. वाइल यू स्टार्ट सेइंग मोर एंड मोर सेंटेंसेज यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, यू विल कम टू नो, ये आप यूज टू हो जाएंगे. आपका जो ब्रेन होगा, आपकी जो टंग होगी, आपका जो बोलने का वे होगा, वो अपने आप ही सब कुछ खुद ही अपने आप को सुटेबल कर लेगा. सभी अपने आप में एडजस्ट हो जाएंगे. सो कीप ऑन सेइंग द सेंटेंसेज. आई विल राइट हियर अ फ्यू सेंटेंसेज इन हिंदी, देन वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. मैंने वो थोड़ा देर पहले मुझे करना था, लेकिन मैंने पहले सोचा मैं सिंगुलर और प्लूरल को अच्छे से एक बार समझा देती हूँ. सो लेट्स राइट दिस sentences in Hindi and then translate into English.
Here are some sentences in Hindi. First I will read it for you. मेरे पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं. मेरे पिताजी, here the subject is मेरे पिताजी, मेरे, my, पिताजी, father. So the subject is here clear, my father. Now it is single. If I have written here father, my father, it means it is a single one. Otherwise here it would have written fathers. Or fathers is not a word. ये हो ही नहीं सकता है. Fathers can be written only with apostrophe s when you make the possessive case of noun. My father मुझे नहीं डांटते हैं. So मुझे is the object here. नहीं डांटते हैं तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? Does not, or we can write here doesn't, does not scold. Scold means होता है डांटना. So does not लग गया तो इसका यहाँ जो scold है इसका मतलब है डांटते, और यहाँ पे है मुझे. My father does not scold me. मेरे पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं. This is the sentence. The another sentence is ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं. ठीक है, ये है जो है ना, ये अपने आप में दो मीनिंग दे देता है हिंदी में. एक तो है हम तब लिखते हैं when someone is senior to us, elder to us, जब हमसे कोई बड़ा हो, सीनियर हो, तो उसको हम जनरली जब संबोधित करते हो तो हैं लगा देते हैं सेंटेंस के अंत में. जैसे ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है. और अगर कह दें ये सभी मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ जो मेरे दोस्त हैं, आई एम नॉट हियर टेलिंग दैट आई वेदर आई रेस्पेक्ट देम और नॉट. मतलब यहाँ कोई ऐसे रिस्पेक्ट वाली बात नहीं बताई जा रही है. जनरली हम जो जब सीनियरिटी या एल्डरनेस की बात करते हैं तो हैं लगा देते हैं. लेकिन जब हम प्लूरल नंबर भी हिंदी में बनाते हैं तो ये है के ऊपर बिंदी आती है, हैं बोलते हैं. तो ये खिलाड़ी, इसका मतलब है हियर दिस सब्जेक्ट इज इन प्लूरल. ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं, तो ये हो जाएगा दीज प्लेयर्स. अब दिस इज प्लूरल, दैट्स वाई वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब. ये जो डू नॉट और डज नॉट है, डू या डज जो है, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करके मीनिंगफुल बनाता है. सो दीज प्लेयर डोंट, you can write here don't, or you can write do not play well. ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज हम लोग गाना नहीं गाते हैं. हम लोग मीन्स मोर देन वन, प्लूरल. सो वी, इसकी इंग्लिश हो गई वी. डू नॉट प्लूरल है तो डू नॉट का स्ट्रक्चर आएगा. वी डू नॉट सिंग. And what do we not sing? We do not sing song. अब लास्ट जो सेंटेंस है इसका कोई मतलब नहीं बनता है. सपोज यू हैव बीन टोल्ड समथिंग, आपको कुछ कहा जाए और आपको लगता है कि नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये तो बेकार की बात हो गई. तो अगर आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? यू कैन से इसका कोई मतलब नहीं. इट डजंट मेक एनी सेंस. देखिए यहाँ पे इट मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज हियर आई हैव रिटन इसका. सो इसका कैन नॉट बी सेड इधर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल. वो मेल है या फीमेल है, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड ही और शी. ठीक है. इसके बाद कोई मतलब नहीं बनता है. मेक सेंस का मतलब होता है मतलब नहीं बनना. मेक मतलब बनना, और सेंस मतलब ही नहीं बनता है इसका. सो दिस वॉज ऑल. दीज वर द 4 सेंटेंसेस. वी कैन मेक मोर सेंटेंसेज ईजिली. जैसे मैं कुर्सी पे नहीं बैठती हूँ. आई डू नॉट सिट ऑन चेयर. मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ. आई डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर. मैं कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करती हूँ. या फिर मैं से सेंटेंसेस बहुत हो गए. राजू कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करता है. राजू डज नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी. राजू को कॉफ़ी पीना नहीं पसंद है. सो अब ये तो सेंटेंसेस नेगेटिव के थे. Now we have a more challenge. One more challenge we have, that is कि जब अब अफर्मेटिव हमने बनाया, नेगेटिव बना लिया. हम जिनके लिए, जिन चीज़ों के लिए यस कहते हैं, नो भी कहते हैं, तो नेगेटिव बना लिया. अब बात आती है भाई क्वेश्चन अराइज कैसे करेंगे. अगर मान लो मुझे सिंपल में क्वेश्चन अराइज करना है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, जैसे क्या खेलते हो, क्या करना पसंद करते हो, क्या तुम मुझे जानते हो. ठीक है. तो हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को जब फॉर्म करते हैं, देखो एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में कहते हैं,
ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बिकॉज वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब फॉर मेकिंग दैम। हेल्पिंग वर्ब हम उसे फॉर्म करते हैं इजीली। दूसरा जो होता है वो होता है WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। सो उसको मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा, उसमें मैं इसको डिस्कस कर दूँगी। तब तक के लिए आप नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Please keep on watching my videos. If you like them, please share it to your friends, subscribe my channel, and be tuned to me. Stay tuned to me. Thank you very much for watching. Have a great day.